اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ مدد کر، یا اللہ مدد کر۔ کیا وجہ تھی کہ ان میاں بیوی پر جن کی شادی ہو رہی تھی ان پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ ان کی گاڑی پر اچانک سانپوں نے حملہ کیوں کر دیا؟ انہوں نے زندگی میں کون سی غلطیاں کی تھیں؟ وہ کون سے گناہ تھے جو ان پر اس خوشی کے وقت میں اللہ کا عذاب سانپوں کی صورت میں آیا؟ آخر کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ اجاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں اور مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ فجر کی صادق نے ابھی آنکھیں کھولی تھیں۔ ایک مکان کے چھوٹے سے کمرے میں ایک جوان لڑکی مصلے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اللہ کی حمد کے بول تھے، آنکھوں میں عبادت کی شبنم تھی۔ یہ تھی فاطمہ، حسن اور عبادت کی پہچان۔ فاطمہ کے والدین اپنے کمرے میں جاگ رہے تھے۔ ماں کے ہونٹوں پر دعا کے کلمات تھے، باپ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانے تھے۔ ان کی غریبی ان کے ایمان پر حاوی نہ تھی۔ وہ جانتے تھے اللہ کی رحمت بے شمار ہے اور ان کی بیٹی اس رحمت کا انعام ہے۔ فاطمہ کے والد غریب مزدور تھے۔ دن بھر کی محنت ان کے چہرے پر تھی، لیکن ہر صبح وہ فاطمہ کو سمجھاتے، بیٹا دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی رضا باقی رہنے والی ہے۔ یہ سب کا فاطمہ کے دل میں اتر چکا تھا۔ فاطمہ کی ماں گھر کے کاموں میں مصروف لیکن ہر کام میں اللہ کو یاد کرتی۔ وہ فاطمہ سے کہتی، بیٹی حسن ظاہری اللہ کی نعمت ہے مگر حسن باطنی اس سے بڑھ کر ہے، ہمیشہ نیک بن کر رہنا۔ یہ تعلیم فاطمہ کی روح میں رچی ہوئی تھی۔ ایک رات فاطمہ نے خواب دیکھا، ایک بزرگ اسے درگاہ کی طرف بلاتے، کہتے آؤ اللہ کا پیغام دوں تمہیں۔ فاطمہ نے خواب دیکھ کر جاگی اور اپنی ماں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ ماں نے کہا، بیٹی اللہ تمہیں راہ دکھا رہا ہے۔ فاطمہ نے اپنی جمع پونجی نکالی، ماں کے ساتھ مل کر نظر تیار کی، چاول، دال، سبزیاں اور گوشت لائی، ہر چیز حلال روزی سے خریدی۔ دعا کرتی یا اللہ قبول فرما۔ اس کا ایمان اس کے ہر عمل میں جھلکتا۔ فاطمہ پہلی بار درگاہ پر آئی، قبر ولی پر ہاتھ پھیلائے دعا مانگی، یا اللہ میری نظر قبول فرما۔ اس کے بعد نظر بانٹنا شروع کیا۔ لوگ آئے، کھانا کھایا، دعا دی۔ فاطمہ کے چہرے پر اطمینان تھا۔ ایک اندھا شخص نظر کھا کر آیا۔ اگلے دن اس کی بینائی واپس آئی۔ ایک بیمار عورت شفا پا گئی۔ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے فاطمہ کی نظر میں برکت ہے، مگر فاطمہ کہتی سب اللہ کا کرم ہے۔ فاطمہ کی زندگی ایک معمول بن گئی۔ صبح نماز، پھر گھر کے کام، دوپہر کو نظر کی تیاری، جمعرات کو درگاہ پر تقسیم۔ ہر ہفتہ یہی معمولات دہراتی اور اللہ کی رضا میں زندگی گزارتی۔ شہر کے دوسری طرف ایک محلومہ گھر۔ احمد اپنے آرام دہ کمرے میں سویا۔ اس کا باپ شہر کا امیر ترین شخص، ماں ہر لگژری میں گزارتی زندگی، مگر ان کے گھر میں سکون نہ تھا کیونکہ ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ احمد کے والد بیمار پڑ گئے۔ ہاسپٹل میں داخل ڈاکٹرز بے بس، تمام دولت علاج پر خرچ ہو رہی مگر صحت میں کوئی بہتری نہ آئی۔ احمد اور اس کی ماں پریشان تھے، کوئی راہ نجات نظر نہ آتی تھی۔ ایک رشتہ دار نے درگاہ کا بتایا، کہا فاطمہ کی نظر میں شفا ہے۔ احمد کی ماں نے اسے منانے کی کوشش کی، چلو بیٹا ایک بار درگاہ چلیں۔ احمد نے اول تو انکار کیا، پھر ماں کے اصرار پر راضی ہوا۔ درگاہ پر پہنچے تو دیکھا ایک منظر، ایک حسین لڑکی نظر بانٹ رہی تھی، اس کے چہرے پر نور، ہاتھوں میں برکت۔ لوگ اسے دیکھتے اور دعا دیتے۔ احمد کی نظر اس پر پڑی تو رہ گئی، اس کے دل میں ایک جذبہ جاگ اٹھا۔ احمد کی ماں نے بھی فاطمہ کو دیکھا، اس کی نیکی، اس کا ادب، اس کا حسن سب دیکھ کر ماں کے دل میں خیال آیا، کاش یہ لڑکی میری بہو بن جائے۔ وہ احمد کی طرف دیکھتی اور مسکراتی۔ دونوں کے دل میں ایک ہی خواہش تھی۔ فاطمہ نظر بانٹتے بانٹتے تھک گئی، مگر اس کے چہرے پر تھکاوٹ نہ تھی۔ ہر شخص کو مسکراتے ہوئے نظر دیتی۔ احمد اور اس کی ماں انتظار کرتے رہے۔ آخرکار فاطمہ نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی طرف بڑھی نظر لے کر فاطمہ نے نظر ان کے حوالے کی۔ احمد کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا بیٹی تم بہت نیک ہو۔ فاطمہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ماں جی یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ یہ تھی ان کی پہلی ملاقات کی شروعات۔ فاطمہ نے اپنا تعارف کرایا، اپنے غریب گھرانے کا ذکر کیا، اپنی نظر کی روایت بتائی اور اللہ کے کرم کی داستان سنائی۔ احمد اور اس کی ماں محصور ہو کر سنتے رہے۔ انہیں محسوس ہوا یہی ان کا مقدر ہے۔ گھر واپس جا کر نظر باپ کو کھلائی۔ ایک عجیب معجزہ رنما ہوا۔ بیمار باپ اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں زندگی واپس آئی۔ احمد اور ماں حیران رہ گئے، ان کا یقین ہو گیا فاطمہ میں برکت ہے۔
अहमद और उसकी मां बेचैन थे। अब अगले जुमेरात का इंतजार था। वो फातिमा से मिलना चाहते थे, अपने दिल की बात कहना चाहते थे। हर रोज गिनती करते, कब जुमेरात आए। ये थी मोहब्बत की पहली किरण। फातिमा ने अपनी मां को सब बताया, अमीर घराने के लोगों की बात की। मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, अल्लाह जो बेहतर समझेगा। फातिमा के दिल में एक उम्मीद जागी, शायद अल्लाह उसके लिए कोई अच्छा फैसला करे। अहमद का दिल फातिमा के लिए धड़कना, हर लम्हा उसका तसव्वुर जहन में। अमीरी की जिंदगी में पहली बार उसे सच्चा प्यार महसूस हुआ। वह जानता था फातिमा उसकी तकदीर है और वह उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। फातिमा ने अपनी इबादत बढ़ा दी, रातें जाग जाग कर दुआएं मांगती, या अल्लाह मेरे लिए नेक शौहर बना। उसका ईमान उसकी हर दुआ में झलकता। वह जानती थी अल्लाह उसकी सुनेगा और उसके लिए बेहतरीन फैसला करेगा। आखिर जुमेरात आया। दरगाह पर हुजूम फातिमा नजर बांटने में मशरूफ। अहमद और उसकी मां आ पहुंचे। उन्हें देखकर फातिमा का दिल धड़का। तीनों की नजरें मिली और हुई बात। ये थी मोहब्बत की पहली ऑफिशियल मुलाकात। अहमद की मां ने बात शुरू की, बेटी, तुम्हें हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। फातिमा ने शर्माते हुए जवाब दिया, मां से बात कर लो, वह फैसला करेंगी। अहमद खुशी से फूल ना समाया। उसका ख्वाब पूरा होता दिखाई दिया। फातिमा ने अपना पता दिया, उनको कहा, आ जाइए हमारे घर। अहमद और मां ने खुशी से कबूल किया और वादा किया आने का अगले दिन। यह था रिश्ते की तरफ पहला कदम और मोहब्बत की कहानी का पहला बाब। तो यूं हुआ फातिमा और अहमद का सफर शुरू, नेकी और ईमान की दास्तान का आगाज। मगर उनके रास्ते में आजमाइशें थीं जो उनके ईमान को परखने वाली थीं। क्या वह इन आजमाइशों में कामयाब होंगे या फिसल कर गुनाह के गड्ढे में गिर जाएंगे? अहमद के वालिद जहीर साहब बिस्तर पर पड़े थे। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। महंगी से महंगी दवा बेअसर साबित हुई। मां की आंखों में आंसू थे। अहमद के चेहरे पर मायूसी थी। ऐसे में दरगाह की नजर आई, उम्मीद बनकर। मां ने नजर का एक चम्मच उठाया, जहीर साहब के लबों तक ले गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से होंठ खोले। नजर के एक चम्मच ने कमाल कर दिया। मरीज के चेहरे पर रंग लौट आया। यह पहला निशान था शिफा का। रात गए तक जहीर साहब गहरी नींद में सोते रहे, वो भी पहली बार बिना दर्द की दवा के। उनकी सांसें ठीक हो गईं, पसीना आया और बुखार उतर गया। अम्मी ने अहमद को जगाया ताकि वो देख सके। दोनों हैरान रह गए यह तब्दीली देखकर। सुबह हुई तो जहीर साहब खुद उठ बैठे, अपने हाथों से चाय मांगी। अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे, अहमद के दिल में फातिमा के लिए मोहब्बत के जज्बात। सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नजर के सदके ने कमाल दिखाया। डॉक्टर आया, मुआयना किया, फिर हैरानी से बोला, यह तो मौजज़ा है। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी डॉक्टर साहब, यह अल्लाह का मौजज़ा है, फातिमा की नजर का असर है। अहमद अपने कमरे में गया। दीवार पर लगी फातिमा की तस्वीर को देर तक देखता रहा। दिल में एक अजीब लहर उठी। सोचने लगा, कितनी नेक और सादी लड़की है। इस जैसी बीवी मिल जाए तो जिंदगी बन जाए। उसी वक्त उसने फैसला किया कि वो फातिमा से शादी करेगा और अम्मी से बात करेगा। अम्मी ने अहमद के चेहरे पर मुस्कान देखी तो पूछा, क्या बात है बेटा? अहमद ने शर्माते हुए कहा, अम्मी, मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूं। अम्मी मुस्कुरा दी, मैं भी यही सोच रही थी बेटा। दोनों के दिल एक ही ख्वाहिश पर मुत्तफिक हो गए। पूरा हफ्ता इंतजार में गुजरा। अहमद को हर दिन लंबा लगता। वो फातिमा से मिलने के बहाने ढूंढता। कभी उसकी मुस्कान याद करता, कभी उसकी शर्मीली नजरें। वो लम्हे याद आते तो चेहरा खुद ब खुद मुस्कुरा उठता। यह अहमद की जिंदगी का पहला सच्चा प्यार था जो उसे बेचैन रखता था। उधर फातिमा अपनी रोज की जिंदगी में मसरूफ थी, नमाज, तिलावत और घर के काम। अम्मी ने पूछा, कुछ सोच रही हो बेटी? फातिमा ने झट से कहा, नहीं अम्मी, कुछ नहीं। मगर दिल में अहमद की तस्वीर थी जो बार बार उभरती और फिर डूब जाती। आखिर जुमा रात का दिन आ गया। दरगाह पर हुजूम था। फातिमा नजर बांटने में मसरूफ थी। अहमद और उसकी अम्मी भी वहां पहुंचे। फातिमा ने जब दूर से उन्हें देखा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तीनों की नजरें मिली। वो लम्हा अजीब था। यह मोहब्बत की पहली मुलाकात थी। अहमद की अम्मी ने बात शुरू की, बेटी, तुम्हारी नजर ने जहीर साहब को शिफा दी। फातिमा ने शर्माते हुए कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मेरा कुछ नहीं। अहमद खामोश खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में मोहब्बत झलक रही थी। अम्मी ने फातिमा का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी, हम तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते हैं। फातिमा ने हया से सर झुका लिया।
अम्मी से बात कर लूंगी। अहमद का दिल खुशी से भर गया। उसे लगा जैसे मंजिल पास आ गई है। फातिमा ने अपना पता दिया, कहा कल हमारे घर आइए। अहमद और अम्मी ने वादा किया कि वो जरूर आएंगे। ये रिश्ता की तरफ पहला कदम था और मोहब्बत की कहानी का नया बाब शुरू हुआ। फातिमा जब घर पहुंची तो खामोश थी। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? फातिमा ने सब कुछ बयान किया। अम्मी मुस्कुरा दी, अल्लाह बेहतर करेगा, मगर आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। अगले दिन अहमद ने नए कपड़े पहने। अम्मी ने तोहफे और मिठाई तैयार की। जहीर साहब ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन करे। सब खुश थे। फातिमा के सादे मगर पाक घर में उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। अहमद की अम्मी ने फातिमा की अम्मी को गले लगाया, तोहफे दिए, मिठाई बांटी। माहौल में मोहब्बत और इज्जत थी। अमीरी गरीबी का फर्क मिट चुका था। दोनों खानदान बैठे गुफ्तगू करने। फातिमा के वालिद ने अपना तारुफ कराया। अहमद के वालिद ने अपना हाल बताया। नजर के मौजज़े का जिक्र हुआ। सब ने अल्लाह की हम्द की जिसने दो दिलों को मिला दिया। अहमद की अम्मी ने कहा, आपकी बेटी बहुत नेक है। फातिमा की अम्मी मुस्कुराईं, अल्लाह का शुक्र है ऐसी बेटी पर। फातिमा शर्माती हुई रसोई में अम्मी की मदद कर रही थी। आखिर रिश्ता तय हुआ। फातिमा के वालिद ने कहा, हम राजी हैं। अहमद के वालिद ने खुशी से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मिठाई बांटी गई, मुबारकबाद दी गई। दोनों घरों के चेहरे खुशियों से चमक उठे। मौका मिला तो अहमद ने फातिमा से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। फातिमा ने हया से कहा, अल्लाह जो बेहतर समझे। ये उनकी पहली सीधी बातचीत थी जो दिलों को छू गई। वापसी पर सब खामोश थे, मगर दिलों में खुशी थी। रास्ते भर अहमद के वालिदैन फातिमा की तारीफ करते रहे। अहमद सोचता रहा, कितना हसीन मुस्तकबिल है मेरा। उसकी आंखों में ख्वाब थे। फातिमा ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह मेरे लिए बेहतर फैसला फरमा। अहमद अपने कमरे में बेचैन था। वो फातिमा के बारे में सोचता रहा। उसकी मुस्कान, उसकी हया, उसका अदब, सब कुछ उसके दिल में बस चुका था। वो जानता था यही उसकी मंजिल है और वो उसे पाकर ही चैन लेगा। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़े, जेवर, जहाज, सबकी सूचियां बनने लगीं। फातिमा की अम्मी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। अहमद की अम्मी ने खुश होकर गरीबों में खैरात बांटी। फातिमा दरगाह गई, शुक्राने के तौर पर नजर बांटी, दुआ की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अहमद भी दूर से आया, सिर्फ एक झलक देखने। दोनों की नजरें मिलीं और मोहब्बत की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। यह रिश्ता नेक नियत और ईमान की बुनियाद पर कायम हुआ था, मगर आजमाइशें अभी बाकी थीं। मोहब्बत अभी शुरू हुई थी। क्या यह मोहब्बत शरीयत के दायरे में रहेगी या खुदा ना करे ख्वाहिशों की राह पर फिसल जाएगी? दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई। फातिमा के घर जहाज की तैयारियां शुरू, अहमद के घर बारात की तैयारियां। मगर अभी 6 महीने का वक्त था जो दोनों के लिए इम्तिहान बनना था। नफ्स की जंग का पहला मैदान था। अहमद रोज फातिमा के घर जाने के बहाने ढूंढता। कभी कपड़े का साइज लेने का बहाना, कभी अंगूठी दिखाने का मौका। हर मुलाकात में वह करीब जाने की कोशिश, फातिमा शर्माती हट जाती, मगर अहमद की नजरें पीछा न छोड़ती। एक दिन अहमद ने कहा, बाहर चलें शॉपिंग, मॉल में कपड़े खरीदेंगे। फातिमा ने पहले तो इनकार किया, फिर वालिदैन के कहने पर राजी हुई। माँ ने कहा, बेटा हम राह चलेंगे, मगर अहमद ने अकेले जाने पर इसरार किया। फातिमा के वालिद ने शर्त लगाई, बहन या माँ साथ होगी जरूर। अहमद नाराज हुआ मगर चुप रहा। उसके दिल में बुरे इरादे जन्म ले रहे थे। वह फातिमा को तन्हा पाना चाहता था ताकि अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके। आखिरकार फातिमा की बहन के साथ तीनों शॉपिंग मॉल पहुंचे। अहमद ने बहन को रोकने की कोशिश की, कहा, आप कॉफी में बैठे, हम आते हैं। मासूम बहन मान गई और अहमद को मौका मिल गया। कॉफी शॉप में अहमद करीब बैठा। फातिमा दूर हटकर बैठी। अहमद ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। फातिमा ने हटा लिया और डर गई। कहने लगी, यह सब गलत है, मगर अहमद के दिल पर असर न हुआ। घर वापस आई तो फातिमा खामोश। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? फातिमा ने कुछ न बताया। दिल ही दिल में घुटन महसूस की। पहली बार उसे अहमद पर शक हुआ कि शायद वह नेक नहीं है। अहमद ने अपनी माँ से कहा, फातिमा से मुलाकात का मौका चाहिए। माँ ने डांटा, यह सब गलत है बेटा, मगर अहमद ने ना सुना। उसने फातिमा के घर फोन किया और झूठा बहाना बनाया। फातिमा सोच में पड़ गई, क्या करें?
क्या ना करें। दिल कहता था अहमद बुरा है, मगर मुंह से कह नहीं पाती थी। शादी टूटने का डर था और लोगों की बातों का खौफ था। अहमद ने दोबारा फोन किया। आज जरूर मिलना है तुमसे। फातिमा ने इनकार किया, मगर अहमद ने दबाव डाला। कहा, वरना शादी टूट जाएगी। यह सुनकर फातिमा घबरा गई। फातिमा की मां को शक हुआ बेटी की परेशानी देखकर। पूछा, कुछ तो बात है, बताओ। मगर फातिमा चुप रही, आंखों में आंसू लेकर अपने कमरे में चली गई। रात भर फातिमा सो ना सकी। अहमद की बातें याद आती, उसकी नजरें याद आती। दिल में खौफ और डर पैदा हुआ। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सही राह दिखा। अहमद अपने कमरे में बेताब। वो फातिमा के बिना रह नहीं सकता था। उसकी तस्वीर देखता और बेकरार होता। मां ने समझाया, बेटा सब्र कर, मगर अहमद की आंखों में आग थी जो उसे बुरे काम पर उकसा रही थी। सुबह फातिमा ने फैसला किया, वह अहमद से मिलेगी एक आखिरी बार और सब कुछ साफ साफ कह देगी कि यह सब गलत है और बंद करो। मगर जब अहमद आया तो उसके हौसले पस्त हो गए। पार्क में दोनों मिले। अहमद ने करीब आने की कोशिश की। फातिमा ने मुंह फेर लिया, कहने लगी, यह सब गुनाह है। मगर अहमद के कान पर जू न रेंगी। वह अपनी ही धुन में मग्न था। पड़ोसी ने फातिमा को पार्क में देखा और उसकी मां को बता दिया। मां घबरा गई और फौरन पहुंची। दोनों को देखा तो गुस्सा आया, लेकिन चुप रही क्योंकि शादी का खौफ था। घर पहुंचकर मां ने डांटा, तुम दोनों क्या कर रहे थे? फातिमा रोने लगी। अहमद ने झूठा बहाना बनाया, कहा, सिर्फ बात कर रहे थे। मगर मां के दिल को यकीन ना आया। फातिमा ने अपने कमरे में बंद होकर अल्लाह से दुआ मांगी, माफी की। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। क्यों वह अहमद के दबाव में आई? अब वह समझ गई थी कि यह रास्ता गलत था। अहमद घर जाकर भी ना समझा। उसने अपनी मां से कहा, मैं फातिमा से मिलता रहूंगा। मां ने डांटा, बेटा यह गुनाह है। मगर अहमद तैयार न था अपनी ख्वाहिशात के आगे झुकने को। फातिमा ने दरगाह जाना बंद कर दिया, नजर बांटना छोड़ दिया। घर में बैठी रहती मां से बातचीत कम कर दी। एक अजीब सी खामोशी उसके वजूद में छा गई। अहमद ने फोन पर धमकी दी, अगर ना मिली तो शादी तोड़ दूंगा। फातिमा ने जवाब दिया, अल्लाह के लिए छोड़ दो ये सब। मगर अहमद ने एक ना सुनी और मिलने पर इसरार करता रहा। मां ने फातिमा के वालिद से बात की, कुछ तो गलत हो रहा है। दोनों ने फैसला किया, शादी जल्द कराएंगे ताकि बुराई का दरवाजा बंद हो और दोनों हलाल हो जाएं। अहमद के घर फोन किया, शादी की तारीख बदलने को कहा, 6 महीने की बजाय 1 महीना। अहमद की मां ने पूछा, क्यों? तो उन्हें सच बता दिया गया कि दोनों मुलाकातों में मशगूल हैं। अहमद को तारीख बदलने की खबर मिली तो खुश हुआ, क्योंकि अब वह जल्द शादी कर लेगा। मगर वह नहीं जानता था कि अल्लाह को यह सब कुछ पसंद नहीं और अजाब तैयार हो रहा है। फातिमा ने सजदे में गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरी नाफरमानी पर आई, अब मैं तेरी तरफ लौटती हूं। यह थी उसकी सच्ची तौबा। तो यूं नफ्स की जंग हार गई फातिमा, मगर तौबा के करम ने बख्श दिया। अब शादी का वक्त करीब आ रहा है, मगर क्या यह शादी हो पाएगी या अल्लाह का अजाब नाजिल होगा? क्या फातिमा की तौबा कबूल होगी? फातिमा की मां रात भर सो ना सकी। बेटी की परेशानी ने उन्हें बेचैन कर दिया। सुबह होते ही उन्होंने अपने शौहर को जगाया। कुछ तो गलत हो रहा है फातिमा के साथ। शौहर ने पूछा, क्या बात है? मां ने आंसुओं में जवाब दिया, पता नहीं, पर दोनों वालिदैन गार्डन में बैठे खुफिया गुफ्तगू करने लगे। मां ने कहा, फातिमा बदल गई है? बाप ने कहा, शादी की परेशानी है। मां बोली, नहीं, कुछ और है। उनकी आंखों में तशवीश थी। फातिमा को बुलाया गया कमरे में। मां ने प्यार से पूछा, बताओ बेटी। बाप ने नरमी से कहा, डरो मत। फातिमा के आंसू निकल आए, मगर वह कुछ बोल ना सकी, सिर्फ सर झुकाए रोती रही। फातिमा के वालिद ने फोन उठाया, अहमद के वालिद से बात की, हमें शादी जल्द करनी है। दूसरी तरफ हैरान हुए, इतनी जल्दी क्यों? पूछा। जवाब मिला, वजह बाद में बताऊंगा। अहमद को पता चला तो खुश हुआ, अब वो जल्द अपनी मंजिल पालेगा। मां ने डांटा, तुम्हारा कसूर है। मगर अहमद ने एक ना सुनी। उसके दिल में खामोशी की लहर दौड़ी। वह फातिमा को पाने के ख्वाब देखने लगा। दोनों घरों में हलचल मच गई। 1 महीने में शादी की तैयारी, फातिमा के घर जेज की तैयारी, अहमद के घर बारात की तैयारी। सब काम तेज रफ्तारी से होने लगे, मगर खुशी के साथ परेशानी भी थी। फातिमा अपने कमरे में बैठी, दिल में अजीब जंग चल रही थी। एक तरफ अहमद से मोहब्बत थी, दूसरी तरफ गुनाह का खौफ था।
वो सोचती क्या मैं अच्छी बीवी बन पाऊंगी। उसके दिल में इत्मीनान न था। फातिमा दरगाह पर आई, आखिरी बार नजर बांटी, दुआ मांगी, माफी तलब की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था, मगर उम्मीद भी थी। मौलवी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने फातिमा को देखा और कहा, बेटी तुम परेशान हो। फातिमा ने सर झुका लिया। मौलवी साहब ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें सुकून दे। अहमद फातिमा को लेकर शॉपिंग को गया। इस बार मां भी साथ थी। अहमद की नजरें फातिमा पर थीं। मां ने महसूस किया सब कुछ। उन्होंने अहमद को डांटा, बेटा शरीयत का ख्याल रखो। फातिमा शॉपिंग के दौरान खामोश कपड़े पसंद करती, मगर मुस्कुराती ना। मां ने पूछा, क्या पसंद नहीं? फातिमा ने जवाब दिया, सब अच्छा है, मगर उसके चेहरे पर उदासी थी जो छुपाई न छुप रही थी। फातिमा की सहेलियां आई सुहाग रात की तैयारियों में। गाने गाए, खुशियां मनाई, मगर फातिमा का दिल न लगा। वह मुस्कुराती तो सही, मगर आंखों में चमक न थी। अहमद अपने दोस्तों के साथ शादी की तैयारियों में मशरूफ। वो बार बार फातिमा का नाम लेता, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ता। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, मगर अहमद को परवाह न थी। रात को मां ने बुरा ख्वाब देखा। एक बड़ा सांप फातिमा को डस रहा था। वह चीखती हुई जागी। पसीने में भीगी हुई उन्होंने फौरन नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी। शादी का आखिरी हफ्ता आया। हर तरफ हलचल मची हुई, मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू। तोहफे आना शुरू हुए, मगर फातिमा की मां परेशान, उनका दिल बोझिल था। फातिमा अपने कमरे में तन्हा सजदे में गिड़गिड़ा रही थी, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मेरी शादी बबरकत बना, या अल्लाह मुझे नेक बीवी बना। उसकी दुआएं रात भर जारी रहीं। अहमद की मां को शक हुआ। उन्होंने शौहर से कहा, कुछ तो गलत हो रहा है। शौहर ने कहा, तुम्हें वहम हो रहा है, मगर मां का दिल नहीं मानता था। उन्होंने खामोशी से दुआ मांगी। निकाह का दिन करीब आया। दोनों घरों में खुशी थी, मगर फातिमा के घर सन्नाटा। मां की आंखों में आंसू, बाप के चेहरे पर तशवीश और फातिमा की खामोशी। सहेलियों ने उसे सजाया, मगर उसके चेहरे पर मुस्कान न थी, जैसे कोई मजबूरी हो। अहमद ने नए कपड़े पहने, खुशी से फूला न समाया। बारात आई, घर जगमगा उठा। मिठाई बांटी गई, मगर फातिमा की मां के दिल में खौफ था। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। पहले अहमद से रजामंदी ली, फिर फातिमा से। उसकी आवाज कांपी, जिसे सबने खुशी समझा। निकाह हुआ, रस्में पूरी हुईं, सबने मुबारकबाद दी। रुखसती का वक्त आया। फातिमा ने वालिदैन के पांव छुए। मां रो पड़ी। गाड़ी फूलों से सजी चली। लोग हाथ हिला रहे थे, मगर फातिमा की मां का दिल धड़क रहा था। गाड़ी में अहमद मुस्कुरा रहा था। फातिमा की आंखें नीची थीं। अचानक मौसम बदला, बादल छा गए, हवा तेज हो गई। तभी एक बड़ा सांप सामने आया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। अहमद ने कहा, कुछ नहीं, मगर फातिमा का दिल घबराया। फिर हर तरफ से सांप निकल आए, गाड़ी को घेर लिया। ड्राइवर बेहोश हो गया। लोग दूर से देखते रहे, कोई पास ना आया। मौलवी साहब आगे बढ़े, अल्लाह का नाम लिया। सांप हटते गए। उन्होंने गाड़ी के पास पहुंचकर पूछा, बेटी क्या बात है? फातिमा रो पड़ी, हमने गुनाह किया है, शादी से पहले हदें पार की। अहमद ने भी कबूल किया, मैंने दबाव डाला, गलती की। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है, मगर वह रहीम है, सच्ची तौबा करो। दोनों ने तौबा की। उसी वक्त सांप गायब हो गए। आसमान साफ हो गया। हवा में खुशबू फैल गई। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फातिमा की मां दौड़ी आई, बेटी को गले लगाया। अहमद के वालिद ने बेटे को डांटा, फिर दुआ दी, अल्लाह माफ करे। सबने सबक लिया कि अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहिए। गाड़ी दोबारा रवाना हुई। अब अहमद और फातिमा खामोश थे, अपने गुनाह और तौबा पर सोचते हुए। नए घर पहुंचे तो दिल में सुकून था। रात को दोनों ने बात की। अहमद ने माफी मांगी, फातिमा ने माफ किया। दोनों ने वादा किया कि अब शरीयत के रास्ते पर चलेंगे। फातिमा ने नमाज पढ़ी, सजदे में रोकर कहा, या अल्लाह हमें माफ कर। अहमद ने भी नमाज शुरू की, अपनी ख्वाहिशों पर काबू पाया और फातिमा की इज्जत की। सुबह दोनों ने मिलकर नमाज पढ़ी, नाश्ता किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उनका रिश्ता पाक और हलाल था। फातिमा की मां ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हुआ। अहमद के वालिद ने कहा, यह सबक हमेशा याद रहेगा। तो यूं हुआ मौजा, तौबा से रहमत का नजूल। अल्लाह ने गुनाह ढांप दिए और दोनों की जिंदगी में
सुकून उतर आया।